ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕਰਮਵੀਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਸਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਯੋਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋਂ ਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਲਵੀ ਮਾਟਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਚ ਨੇ ਔਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੋਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਬਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਲਵੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਲਵੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? तो योगा एक बहुत ही पुरानी साइंस है जो इंडिया में ही डिस्कवर हुई थी और योगा से माइंड, बॉडी एंड सोल का कनेक्शन होता है। तो योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज ही नहीं है बल्कि आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी को स्ट्रेच करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है और ब्रीदिंग से आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है। ओवरऑल हेल्थ इसमें इंप्रूव होती है। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਮਾइंड, ਬॉडी ਐਂਡ ਸੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਵਸਥ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਵਸਥ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਜਿਮ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਯੋਗ ਤੇ ਜਿਮ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? नहीं, योग और जिम बिल्कुल डिफरेंट है। जिम में आपकी सिर्फ मस्कुलर बॉडी पे ध्यान दिया जाता है और फिजिकल लुक्स पे ध्यान दिया जाता है, बल्कि योगा में आपकी मस्कुलर बॉडी तो बनती ही है क्योंकि हम अपनी बॉडी वेट ही अपने ऊपर उठा सकते हैं, इतना आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है। बट इसमें आपका माइंड भी काफी रिलैक्स होता है। जब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं तो उससे आपके माइंड पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप काम रहते हो पूरा दिन, आपको गुस्सा नहीं आता है, प्लस आपका सोल भी एनहांस होता है क्योंकि आप एक कनेक्टेड फील करते हो अपनी माइंड और बॉडी के साथ। तो आप इन तीन चीजों को बैलेंस करते हो, आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस होती है। इसलिए योगा एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है और जिम जो है वो आपकी लुक्स पे और मस्कुलर हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देता है। अच्छा, मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਔਰ ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੋਗ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਬਾਈਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯੋਗ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੇਂजेस ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? तो योगा जब आप अपनी लाइफ में लेके आते हो तो सबसे पहली चीज तो आपको ये सीखने को मिलती है कि आप कैसे बिल्कुल पूरा दिन अपने साथ जुड़ते हो, क्योंकि आपने इसमें प्राणायाम को इंक्लूड करते हो तो आपकी जो ब्रीदिंग पार्ट है बॉडी का वो धीरे हो जाता है। आप धीरे धीरे सांस लेना शुरू करते हो जिससे कि आप अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट होते हो। इसमें मैं एक और बात जोड़ूंगी कि लोगों को सांस ही लेना नहीं आता है, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। जैसे मैं योगा टीचर बनी हूँ तो अगर मैं 10 लोगों को योगा सिखा रही हूँ उसमें से 5 लोग गलत तरीके से सांस ले रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं यही सिखाना चाहूंगी कि पहले आपको सांस अपनी ठीक करनी है। जब आप सांस को अंदर लेते हो तो आपका पेट बाहर आना चाहिए और जब आप सांस छोड़ते हो तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। ये सबको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ पेट ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। गुब्बारे की तरह हम गुब्बारे में गैस भरते हैं तो वो फूल जाता है और गैस निकालते हैं वो छोटा हो जाता है। तो वैसे ही हमारी टेक्निक होती है ब्रीदिंग की। तो जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उसमें से आधे स्टूडेंट्स यही टेक्निक गलत करते हैं जिसकी वजह से उनको गट इश्यूज होते हैं, पेट में बीमारियां होती हैं, बट उनको समझ ही नहीं आता कि वो ठीक क्यों नहीं हो पा रही हैं दवाइयां खाने के बावजूद। अच्छा, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? मतलब ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ पेट ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ कर सकता? तो इसमें बस आपने कॉन्शियस होना है पूरा दिन ना। जैसे या तो आप घड़ी पे रिमाइंडर लगा लो कि सिर्फ 1 घंटे में एक बार आप अपने पेट पे हाथ रख के देखो कि आप अब सही कर रहे हो कि नहीं। ये सिर्फ माइंड से ही आप ठीक कर सकते हो। कॉन्शियस रह के ही अपने आप को बस आपने बार बार टोकना है और चेक करना है। ये सिर्फ 3 या 4 दिन अगर आप कॉन्शियस रहना शुरू कर दोगे तो आपकी अपने आप ही ब्रीदिंग टेक्निक ठीक हो जाएगी।
ਪਲਵੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50% ਲੋਕ, ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ गलत हैगा। तो इस तो अलावा और की गलतियां कर रहे होंगे हैं? इसके अलावा एक सबसे बड़ी गलती होती है कि वो अपनी स्पाइन को सीधा रखते नहीं है, वो सीधे नहीं बैठते हैं। तो जो लोग मेरे पास आते हैं उनको चलते हुए भी झुक के ही आते हैं, बैठते हुए भी झुक के बैठते हैं। सबसे पहले इस चीज को मुझे करेक्ट करना पड़ता है, बार बार टोक टोक के, कि आप सीधे होके बैठो, स्पाइन को सीधा रखो। जब तक आपकी स्पाइन सीधी नहीं होगी तब तक आपकी बॉडी अलाइन नहीं होगी, आपके चक्रास अलाइन नहीं होंगे। तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं जो कि स्पाइन की जगह पे होते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, क्राउन तक, मूलाधार से लेके क्राउन तक होते हैं। और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी स्पाइन का सीधा होना। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, जो लोग ध्यान नहीं रखते हैं और हमेशा झुक के बैठते हैं, झुक के चलते हैं। मतलब अपनी रीढ़ दी हड्डी सीधी रखना। तीसरी गलती, हाँ जी, या ये दो गल्ला सफिशिएंट है? ये दोनों मेन चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और अपनी ब्रेथ का हमें डीप इनहेल लॉन्ग एक्सहेल करना चाहिए। अब ये तो आपने सीख लिया कि सांस, थोड़ा एक्सप्लेन करना। हाँ जी प्लीज। हाँ जी, ये तो आपने सीख लिया कि सांस कैसे लेनी चाहिए, बट काफी लोग ऐसे हैं जो अपनी सिर्फ चेस्ट तक ही इनहेल करते हैं, यहीं से आपकी ब्रेथ वापस आ जाती है, मतलब वो डीप नहीं जा पाते अपने पेट तक। तो इसमें भी थोड़े से अगर आप कॉन्शियस हो जाओगे तो आपका जो सांस आप लोगे, आपने ध्यान देना है कि आपकी चेस्ट से होते हुए आपके पेट तक जरूर जाए। जितनी आप शैलो ब्रीदिंग, मतलब जितनी धीरे आपकी ब्रीदिंग होगी, उतनी हेल्दी आपका लाइफस्टाइल होगा और उतनी ही कम बीमारियां आपकी बॉडी में आएंगी, क्योंकि इससे एयर का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है बॉडी के अंदर। तो ब्लड का सर्कुलेशन तो हम योग से करते ही हैं, जब भी कोई हम प्रैक्टिस करते हैं या आसन करते हैं, वो चीज हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है। बट जब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को डीप कर देते हैं, पेट तक जाता है, तो वो एयर का सर्कुलेशन भी बॉडी में बढ़ना बहुत जरूरी है, ब्लड के सर्कुलेशन के साथ साथ। जी, सो ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? नेक्स्ट स्टेप होएगा कि आपने अपनी बॉडी को डेली 7 स्पाइनल मूवमेंट्स देनी ही देनी है। अगर कोई भी योग शुरू कर रहा है, स्पाइनल मूवमेंट्स मतलब जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी की 7 मूवमेंट्स। इससे क्या होता है कि आपकी एकदम से बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और रीढ़ की हड्डी से हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम चलता है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता है और उसमें से सारी तारें निकलती है, वैसे हमारी रीढ़ की हड्डी में सारा नर्वस सिस्टम कनेक्टेड होता है बॉडी का। माइंड हमारी रीढ़ की हड्डी पे सिग्नल भेजता है और वहीं से सारे सिग्नल हमारी पूरी बॉडी को जाते हैं, हैंड्स को जाते हैं, लेग्स को जाते हैं, और उसी से हम आगे काम करते हैं। थोड़ा स्पाइनल मूवमेंट्स भी एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, तो 7 स्पाइनल मूवमेंट्स में सबसे पहला आता है अपने आप को खींचना ताड़ासन से। ताड़ासन मतलब दोनों हाथों को लॉक करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और अपनी हील को उठाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है, आपकी भार होना, मतलब आप जिवें बोलते हैं भी दोनों हाथ ऊपर करके और अपने उंगलियां दे भार नाल खड़े होना। हाँ जी, उसको हम ताड़ासन बोलते हैं। उससे क्या होता है, आपकी स्पाइन खिंचती है। तो स्पाइन में हमारी 33 वर्टिब्रेज होती है, अलग अलग हड्डियां होती है, जिनको खींचना बहुत जरूरी है डेली बेसिस पे। तो सेकंड और थर्ड जो है वो आती है हमारी साइड बेंडिंग। साइड मतलब चाहे आप हाथ को ही लॉक करके रखो, पहले एक साइड पे बेंड होके होल्ड करो, फिर दूसरी साइड पे बेंड होके होल्ड करो। तो इसको हम मतलब साइड पासे ते सज्जे पासे झुकना है, तुसी मतलब एक बारी करके बिल्कुल 10 सेकंड के लिए होल्डिंग करनी है। पहले खींचना है, 2 मूवमेंट हो गई है, फिर हाँ ये 2 मूवमेंट हो गई, राइट एंड लेफ्ट। उसके बाद 4th एंड 5th है आपकी जो ट्विस्टिंग मतलब जैसे अगर पीछे दीवार है तो दोनों हाथ पीछे दीवार पे लगाए, 10 सेकंड के लिए होल्ड किया एक तरफ से, फिर दोनों हाथ दूसरी तरफ से आपने दीवार पे लगाए, 10 सेकंड के लिए होल्ड किया। तो ये हमारी हो गई, मतलब एक किस्म की ਤੁਹਾਡੀ गर्दन दी एक्सरसाइज हो गई कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ घूम के, गर्दन की नहीं आपकी पेट की भी होगी, क्योंकि वो ट्विस्टिंग है, पूरा पेट ही घूम जाएगा, रीढ़ की हड्डी आपकी ट्विस्ट करेगी, घूमेगी। तो ये आपकी हो गई 5, एक लंबा खींचना, 2 साइड बाय साइड और 2 हो गई ट्विस्टिंग वाली। तो जो 6th और 7th है वो है फॉरवर्ड बेंड और बैकवर्ड बेंड। मतलब हमने आगे की तरफ झुकना है 10 सेकंड के लिए और पीछे बैक बेंड करना है 10 सेकंड के लिए। अगर आप ये 7 मूवमेंट्स डेली बेसिस पे सिर्फ यही 7 मूवमेंट स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपकी बॉडी में अपने आप एक्टिवेशन होगी, एनर्जी आनी शुरू होगी, क्योंकि आपने जो मेन सर्किट है बॉडी का उसी को एक्टिवेट कर दिया। जी जी जी। एक पलवी जी मेरा प्रश्न है हैगा कि ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਝੁਕ ਲੈਨੇ ਆ, मतलब
ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ हाँ ਬਟ जी। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ हाँ जी। ਇਟ ਮੇਕ ਸਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿ एक्चुअली ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ फर्क ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ नहीं पैंदा एक्चुअली हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमें आगे झुकने वाले काम करने ही पड़ते हैं। कुछ गिर जाता है तो उसको उठाना है, अगर हमने बेड को सेट करना है तो उसके लिए आगे झुकना है, शूज पहनने तो उसके लिए आगे झुकना है। बट पीछे झुकने वाले हमारे काम है ही नहीं हमारी लाइफ में, तो उसको आपने अपने मैंडेटरी लाइफ में एड ऑन करना है। जैसे जैसे आप इसको डेली बेसिस पे करते जाओगे आपकी स्पाइन खुलती चली जाएगी और आपकी बैक बेंड्स डीपर होती चली जाएंगी। बट इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको हमेशा कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है। डेली करोगे तभी होगा, ये नहीं कि आप हफ्ते में एक बार ही बैक बेंड कर रहे हो फिर अगले हफ्ते कर रहे हो तो आप कहोगे इसमें तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो योग का सबसे बड़ा रूल ये भी है कि कंसिस्टेंसी इज द मेजर थिंग जो आपने ध्यान ਲਗਾਤਾਰਤਾ हाँ ਮਤਲਬ जी। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਪਲਵੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ हाँ ਕੀ जी। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, मतलब ਕੀ योग आसन करने चाहिए हैं? योग आसन वैसे तो सभी बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं आसन ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਈਨਲ मूवमेंट्स ਤੋਂ ਬਾਅਦ? जी, स्पाइनल मूवमेंट्स के बाद आपके थोड़े से योग आसन होते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम लोगों को आजकल आ रही है, स्पेशली यूथ को आ रही है, वो है सर्वाइकल एरिया और अपर बैक हाँ पेन। बिल्कुल, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ हाँ जी। ਕਰਦੇ ਆ, मूवमेंट्स ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ बिल्कुल। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ हाँ ਪੈਂਦਾ, जी। ਸਰਵਾਈਕਲ तो ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ सब ਹੈ। बच्चे भी आजकल झुक के गेम्स खेल रहे हैं या मोबाइल पे लगे हुए हैं। बिल्कुल सही। तो उनके लिए सबसे पहला आसन जो सबसे अच्छा है वो है कोबरा पोज। तो उसे हम भुजंग आसन भी बोलते हैं। वो सिंपल आपने मैट पे लेटना है, दोनों हाथ अपने शोल्डर के नीचे, कंधों के नीचे रख के अपनी अपर बॉडी को उठाना है। तो ये बहुत कॉमन और सिंपल है जो कि आपकी अपर बैक पेन और सर्वाइकल इश्यूज को रिवर्स करता है। फिर आपकी आती है नेक मूवमेंट्स। नेक मूवमेंट्स करनी बहुत जरूरी है। जैसे हम सर्कल में घुमाते हैं अपने नेक को, एक तरफ घुमाते हैं फिर दूसरी तरफ घुमाते हैं, नेक की साइड बेंडिंग्स दोनों तरफ और अप एंड डाउन नेक का। ठीक है, ये जो नेक मूवमेंट्स हैं या 2-3 आसन हैं, धनुरासन हो गया या आपका कोबरा पोज हो गया, ये सब आपके अपर बॉडी को हील करती है और ये सभी को डेली बेसिस पे करना चाहिए। मतलब दो अलग अलग करने जरूरी हैं या इक्को नाल ही काम सर जाता है? वैसे तो नेक मूवमेंट्स ही आप अगर चेयर पे बैठ के करो या सुबह कभी भी करो तो उससे भी काफी अच्छा फर्क पड़ता है। बट योगा का अगर आपने अभ्यास शुरू किया है तो आपको 10 से 12 आसन बैक टू बैक करोगे तभी आपकी फुल बॉडी रिकवरी होगी। सिर्फ 1-2 आसन करके ही आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको बड़े ही कॉमन आसन बताऊंगी जो सबको पता है और वो सब कर सकते हैं घर पे रह के। तो अभी हमने अपर बॉडी की बात करी है कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है आजकल। सांस की जैसे मैंने बात करी है, सांस उखड़ती है लोगों की क्योंकि पॉल्यूशन भी इतना है। तो उसके लिए आपको 2-3 आसन है जो आप करोगे। जैसे तो एक मैंने ताड़ासन बताया था, उसमें आपने होल्डिंग करनी है, ट्री पोज करना है। ट्री पोज मतलब जैसे वृक्ष होता है वैसे ही हमने दोनों हाथ ज्वाइन करके हाँ जी ऊपर करना होता है और एक लेग को फोल्ड करना है। इन सब में ब्रेथ का अपना ध्यान रखना है और अपने हाथों को खोल के पीछे तक की तरफ लेके जाना है सांस भरते हुए, हाथों को आगे की तरफ लेके आना है सांस छोड़ते हुए। ये बहुत अच्छा है आपके लंग्स के लिए। तो इससे आपकी लंग्स मतलब जो ट्री आसन है, दरख्त मतलब पेड़ उसमें आसन, तो होल्डिंग करनी है। अच्छा, उसमें सिर्फ होल्डिंग करनी है? हाँ, उसमें होल्डिंग करनी है। और जो मैंने अभी बताया दोनों हाथ सामने रखने हैं और धीरे धीरे खोलना है सांस भरते हुए, फिर धीरे धीरे हाथों को आगे लेके जाना है सांस छोड़ते हुए। मतलब नॉर्मल खड़े होके? हाँ, चाहे बैठ के करो चाहे खड़े होके। अपने हाथों को बिल्कुल सीधा कर लो, फिर इनहेल करते हुए खोलो, एक्सहेल करते हुए बंद करो। इसको कम से कम 3 बारी आपने करना है और आपकी सांस इससे थोड़ी डीप होएगी। और कोई भी अगर आपको अस्थमा रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स है तो आपके लंग्स उससे खुलने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो आपके पेट से रिलेटेड आती है। पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, या पेट से रिलेटेड समस्याओं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं या आपको हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको ट्विस्टिंग वाले आसन करने चाहिए। ट्विस्टिंग वाले आसन होते हैं जैसे मस्तेंद्र आसन जिसे हम बोलते हैं। जैसे ट्विस्टिंग पोस्चर ही अगर आप देखोगे तो वो आपके पेट से रिलेटेड समस्या वो सारी ठीक होती है। फिर उसके बाद जैसे शुगर की प्रॉब्लम है उसमें पैनक्रियास को एक्टिवेट करना होता है।
तो हर एक बीमारी किसी न किसी चक्रा से जुड़ी होती है। जैसे अगर पेट से रिलेटेड बीमारी है तो पीसीओएस, पीसीओडी या थायराइड जो आपकी गले से रिलेटेड है, ऐसी सारी बीमारियां किसी न किसी बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है और उन सबका ही कोई ना कोई आसन योग में है जिससे आप वो ठीक कर सकते ਹੋ। ਪਲਵੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਪੀਸੀਓਡੀ ਔਰ ਪੀਸੀਓਐਸ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ बताते हैं नेक्स्ट की स्टेप होएगा थोड़ा। नेक्स्ट वही है कि आप जैसे आपने अब लेग्स का हमारा रह गया था कि लेग से रिलेटेड लोगों को अपनी काफ पे बहुत ज्यादा, पिंगलियों पे बहुत ज्यादा दर्द होती है आजकल। तो वो इसलिए होती है क्योंकि आप स्ट्रेंथनिंग नहीं करते हो मसल की। मसल स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है हर एक बॉडी पार्ट की। अगर आप स्ट्रेंथनिंग करोगे तो उस एरिया में आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से वो बीमारियां अपने आप डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो काफ मसल होते हैं उनको हम सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ये लोगों को पता ही नहीं है। सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी, सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी मतलब ਦੂਜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ, तो उस दूसरे दिल का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है जी। हाँ जी, तो ये दूसरा दिल है क्योंकि जो आपका पहला दिल है वो आपका सर्कुलेशन पूरी बॉडी में भेजता है, नीचे की तरफ इजीली आता है। बट जो आपके काफ मसल्स हैं उसमें से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। जिन लोगों की ये मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं होती उनका सर्कुलेशन ब्लड का ऊपर की तरफ नहीं आ पाता, नीचे ही रह जाता है, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है आपकी लेग्स में और आपको काफ में बहुत ज्यादा दर्द रहती है। तो इसकी एक सबसे इजी एक्सरसाइज है, बेड के साथ लेट के या दीवार के साथ लेट के अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ रखेंगे और उसमें होल्डिंग करनी है 5 मिनट के लिए, सोने से पहले स्पेशली, ताकि वो सर्कुलेशन अपने आप आपका ऊपर की तरफ आए और आपकी ये प्रॉब्लम थोड़ी रिवर्स हो। जितनी भी सोजन है आपकी पैरों के अंदर, पानी हमारा इकट्ठा हो जाता है, हमारे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, वो सारा वापस ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। तभी जब हम बीमार होते हैं, हमें कोई चोट वगैरह लगती है, फ्रैक्चर होता है, तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि 2 या 3 पिलो लो, उसके ऊपर अपने पैर रखो। वो इसीलिए बोलते हैं कि वो जो नीचे इकट्ठा हो रहा है ब्लड वो सारा ऊपर की तरफ ट्रेवल करे। मतलब सर्कुलेशन ये तो सभी को करना चाहिए, दर्द है या नहीं है, रात को सोने से पहले मैंडेटरी है। अगर आप ये करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी लेग से रिलेटेड। जी जी जी। और जिवें हुण असी अपनी लेग्स की एक्सरसाइज भी हो गई, हुण नेक्स्ट की हैगा तुहाडे कोल? नेक्स्ट है प्राणायाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप एक एक्सरसाइज का सेट कर लेते हो योगा में, उसके बाद प्राणायाम जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं होता। तो प्राणायाम में सबसे पहला आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही सिंपल है, इससे हमारी बॉडी भी रिलैक्स होती है, माइंड एकदम शांत हो जाता है और जो हमें थॉट्स आते हैं पूरा दिन, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो भी आपको आने कम हो जाते हैं धीरे धीरे। तो आप जब मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो एक आता है 0 थॉट जोन, वो काफी दूर की बात है। स्टार्टिंग आपको अनुलोम विलोम से करनी है। और उसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमिंग बी साउंड भी बोलते हैं। उसमें जैसे मधुमक्खी आवाज, भ्रमर की आवाज होती है ना, वो हमने निकालनी होती है। इससे भी आपका जो मेंटल स्टेट है वो बहुत रिलैक्स होता है। थोड़ा तुसी ये तो करके दस सकते हैं, मन लगता कि बेशक नहीं सानू देख पाएंगे पर वो साउंड दे नाल थोड़ा जरूर फैमिलियर हो जाएंगे साडे श्रोते। तो इसमें सबसे पहले आपने अपना अंगूठा कान के साइड पे मांस का टुकड़ा होता है, उसमें अपने अंगूठे को रखना है और वो अंदर की तरफ करना है ताकि आपको बाहर की आवाजें ना सुनाई दें, और अपने फिंगर से अपनी आईज को क्लोज करना है। तो इसमें आपने जैसे इनहेल करना है, एक बारी सांस को अंदर खींचना है और फिर एक्सलेशन में हमिंग साउंड निकालनी है। तो हमिंग साउंड कैसे निकलती है देखेंगे। जैसे मैंने अपने कानों को बंद किया, आवाज नहीं आ रही, इनहेल किया, जी। ऐसे आप जितना लंबा लेके जाएंगे उतना ही बेटर है, क्योंकि ये आपकी बिल्कुल ब्रेन पे काम करता है, आपको एकदम रिलैक्सेशन मोड पे लेके जाता है। इसको आप अगर रात को सोने से पहले करोगे तो आपको बहुत अच्छी नींद भी आती है जी। हाँ जी। तुसी हमिंग साउंड के बारे में गल हो गई, मतलब रिलैक्सेशन माइंड नु प्राणायाम की गल कर रहे हैं, तो प्राणायाम दे विच फिर नेक्स्ट स्टेप की होएगा? प्राणायाम जैसे बढ़ते चले जाते हैं, इसमें कपाल भारती भी आता है। जैसे इसमें कपाल भारती प्राणायाम वैसे तो बहुत अच्छा है, आपके पेट से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, बट कुछ प्रिकॉशंस इसमें होती हैं। जैसे किसी को हाई बीपी है
या हर्निया इश्यूज है उनको नहीं करना चाहिए। तो ये आप गाइडेंस में ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏ। हाँ जी, हाँ जी, ये दो तो आप कोई भी कर सकता है। इसका नाम है अनुलोम विलोम और भ्रामरी। उसके बाद जो आते हैं प्राणायाम वो थोड़े से आपको सुपरविजन के अंडर करने चाहिए। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਾਂਜੀ। ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲਵੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ। हाँ जी, ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲਵੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਰੇਨਲ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ रिवर्स हो भी जाती है ये भी दसना। हाँ जी, रिवर्स तो हो जाती है क्योंकि मेरे को हर्निया का इशू था और वो मेडिकली डॉक्टर्स ने बोला था ये कभी जिंदगी में रिवर्स नहीं हो सकता। आप कहीं पे भी साइंटिफिकली देख लो तो हर्निया कैन नॉट बी रिवर्स, उसका ऑपरेशन ही होता है जब आपको दर्द उठती है। तो जब मेरा हर्निया रिवर्स हुआ था तभी मैं इस जर्नी में मैंने सोचा था कि दैट आई विल बिकम अ योगा टीचर। उसके बाद ही मैंने कोर्स किया। तो ऑफ कोर्स ऐसी ऐसी बीमारियां भी योगा से रिवर्स होती हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं हो सकती। बट इसमें जो मेन चीज है वो है कंसिस्टेंसी और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ डेली अभ्यास करोगे योगा का, प्राणायाम को इंक्लूड करोगे, आसना को इंक्लूड करोगे और अपने आप से सेल्फ एफर्मेशंस पॉजिटिव बोलोगे। एफर्मेशंस का बहुत ही बड़ा रोल है लाइफ में। तो अगर आप खुद को बोलोगे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मतलब आपने अपने लिए अच्छी अच्छी बातें बोली। ये सेल्फ एफर्मेशंस भी योग का पार्ट है? ये योग का पार्ट ऐसे नहीं है, बट मैं अपनी क्लासेस में जैसे कराती हूँ तो मैंने इसमें बहुत सारे चेंजेस देखे अपने स्टूडेंट्स में, जो कहते थे कि हम बड़े नेगेटिव थे तो एक एक महीने में उनके रिजल्ट्स आए हैं उनकी बीमारियों में। तो ये पॉजिटिव एफर्मेशंस योग के साथ अगर आप इसको इंक्लूड करोगे ना तो ये मैजिक है, क्योंकि मैंने अपनी स्टूडेंट्स के अंदर ये मैजिक होते हुए देखा है। तो अगर आप योग कर रहे हो या कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके बाद 5 मिनट बैठ के आप दोनों हाथ अपने दिल पे रखेंगे और आंखें बंद करके अपने आप से पॉजिटिव बातें करेंगे ना तो आपका लाइफ में मैजिकली रिवर्स होंगी बीमारियां। इस चीज ने मुझे भी काफी हेल्प की है। तो एक ये छोटी सी टिप है जो आउट ऑफ द योग है, बट मैं चाहती हूँ कि सभी करें। जी जी जी। अच्छा, हुण आपां पल्लवी जी जिवें लाइफस्टाइल डिसीजेस दी गल कीती है, मान लो किसी नूं डायबिटीज दी प्रॉब्लम है, हाँ जी, उसनूं की करना चाहिए हैगा योग नाल संबंधित? योग से संबंधित सबसे ज्यादा इसमें आपके काम आते हैं प्राणायामा। तो प्राणायामा से आपका जो है इम्यूनिटी ठीक होती है, मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। तो आसन तो आपके काम आएंगे ही आएंगे, बट जब आप इसमें प्राणायाम को ऐड करोगे तो आपकी बड़ी जल्दी इम्यूनिटी ठीक होगी और ये बीमारियां रिवर्स होना शुरू। प्राणायाम च जेडे दो तुसी दसे हैगे हैं, अनुलोम विलोम ते भ्रामरी, ये दोनों सफिशिएंट है? ये तो करने हैं एवरीडे। बाकी के जो प्राणायाम है अंडर सुपरविजन आप कर सकते हैं। मेरा प्रश्न ये सी कि भी हाँ डायबिटीज वास्ते कि इन्हां दोनों नाल नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं। नाड़ी शोधन भी बहुत अच्छा है आपके लिए जी। हाँ जी। और इसे तरीके जे असीं गल करिए हाइपरटेंशन या बीपी ब्लड प्रेशर, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी सबसे अच्छा आपका अनुलोम विलोम ही माना जाता है। तो ये तो रामबाण प्राणायाम आपने ऐड करने हैं, प्लस कुछ एक्सरसाइजेस का सेट है, कुछ आसनों का सेट है जो आप करोगे। तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस के मेन 2 प्राणायाम आप डेली पकड़ के चलो, एफर्मेशंस आप डेली पकड़ के चलो और 7 स्पाइनल मूवमेंट्स आपने करनी है, प्लस उस बीमारी से रिलेटेड 2 या 3 आसन वो आप करोगे तो आपको ड्रास्टिक चेंजेस दिखेंगे अपने आप में। जी पल्लवी जी, कुछ बीमारियां इदां दियां भी हैगियां जिन्हां दा नाम सुणदा ही बंदा डर जांदा, जिवें कैंसर है ना, सी शब्द जिहड़ा है बोलदे ही बीमारी दे नाल एकदम कुछ इस तरीके दी फीलिंग आंदी हैगी है कि जिन्हों डिस्क्राइब कर पाना भी मुश्किल हैगा। तो की योग दे नाल इस तरीके दीयां बीमारियां च भी कोई हेल्प मिलदी है? और किस स्टेजेस दे अकॉर्डिंगली थोड़ा जे तुहाडा कोई इस तरीके दा एक्सपीरियंस है? योगा में ऐसी बीमारियां तो देखो योगा से कंप्लीटली रिवर्स नहीं हो पाती, इसमें आपको मेडिकल जरूर एड ऑन करना पड़ता है। तो मेडिकल अटेंशन तो इसमें साथ में चाहिए
चाहिए। बट अगर आप योगा करते हो ना तो आपके अंदर एक हिम्मत बहुत ज्यादा आ जाती है, आपको उस चीज से डील करने की पावर आ जाती है, आपका मन डिसहार्टन नहीं होते, आपके अंदर ऐसी शक्ति आती है कि कुछ भी हो जाए मैं इस चीज से निकल के अच्छे से अपनी लाइफ मतलब योग ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ मेंटल स्ट्रेंथ बहुत आती है आप में ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ वो ही ਹੈਗੀ ਹੈ। रिवर्स कर देती है। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? मैं यही कहूंगी कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को योग करना चाहिए। योग एक कंपटीशन नहीं है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वहीं से शुरू करें और आप अपनी लाइफ में योग को हमेशा अपने साथ रखें ताकि आपकी इम्यूनिटी ठीक रहे, मेटाबॉलिज्म ठीक रहे और आपकी जो शक्ति है आत्मशक्ति ये बहुत बढ़ाता है, तो इसको आप जरूर अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें। ਜੀ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਪਲਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰੋ ਔਰ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਤੋਂ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਪਲਵੀ ਮਾਟਾ ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ ਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕੋਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।